Hello everyone. So today I will clear 50th question, that is an unsolved problem from the first chapter. Here this is the different kind of question we have. In this we have given the opening balance sheet and receipt and payment account, and we are to prepare income and expenditure and closing balance sheet. So in certain cases opening balance sheet is given to you, and from where we will have to treat each and every transaction. Like we have given tournament fund, and this is a specific fund. So in case if you have given the tournament fund, you will not take expenses of tournament, and if they have given the donation for tournament, so this will be part of your balance sheet. Similarly, subscription outstanding is given in the opening balance sheet, means this is the opening outstanding, and subscription received in advance is given on the liability side. This is the opening advance, and we have given in the adjustment also. Here we have subscription still to be received and subscription already received include 4,000 for the next year. Since one more adjustment we have given, salary still unpaid. This is the outstanding, and this is given below. These are the closing figures. And sports equipments are now valued at 45,000. It means this is a closing value of sports equipment. ठीक है जी. So कैसे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? Here income and expenditure, then balance sheet. ठीक है जी. So from very first we have given the opening balance. ये हम कहाँ पुट करते थे? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, बट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, सो दिस विल हैव टू इग्नोर. यू कैन क्रॉस चेक दिस आइटम. वी हैव 39,000 here, and here we have also 39,000. Then next is subscription. So subscription is your income, and here we have 4 adjustment of subscription. One is subscription received during the year. This is 1,81,000. Then subscription outstanding means the opening balance, opening outstanding. ये क्या होती है? Minus. Then subscription in advance means the opening advance. This would be added. And 2 more adjustments are there still to be received and for the next year. So total we have 5 amounts here. So हम इसे कैसे put करेंगे? In income and expenditure account. Here by subscription. ठीक है. So first figure you will write 1,81,000. ठीक है. Then 2 amounts are to be added and 2 amount are to be deducted. Add कौन सी करते हैं? Opening advance, that means 6,000. और कौन सी add करते हैं? Still to be received, that is 5,500. It means you will write opening advance and closing outstanding. Similarly, 2 items. One is for the next year. We have that amount is 4,000, and subscription outstanding opening, that is 8,000. Here we will write 8,000, and the remaining figure would be the outer figure. Then sale of old materials. This is a journal sale, so this is your journal income. You will put here by sale of old materials. Then afterwards, sale of sports equipment. Here we will count any profit or loss. 10,000 is the book value and 6,000 is the sale proceeds. Since we are incurring a loss, that is of 4,000, we will take here 2 loss on sale of sports equipment, that is 4,000. ठीक है जी. Then स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, हमारे पास ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हेयर, प्लस परचेजेस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर ऑल्सो देयर. बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मीन्स दीज आर द परचेजेस. और यहाँ पे आ गई सेल्स 1, 2 and 3, and the last is sports equipment are now valued at 45,000. This is the closing balance. ठीक है जी. सो इन क्वेश्चन में जब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, व्हाट वाज दैट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज व्हाट? दिस इज डेप्रिसिएशन, मीन्स द कंज्यूम्ड वन. कितने स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम करे हैं, दिस विल कम फ्रॉम दैट फिगर. So opening stock we will take 50,000.
50,000. Purchases, here we have 20,000. और सेल्स में आपको लेनी है बुक वैल्यू, ठीक है जी. सो माइनस 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक दैट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट 45,000. ठीक है जी. सो ये करके आपका कितना आएगा, 60 और 15 दैट विल कम 15,000. 15,000 मीन्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, या फिर आप कह सकते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ, या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ईच एंड एवरी आस्पेक्ट वुड बी करेक्ट. सो यू विल राइट हेयर टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ दैट इज 15,000. और यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है वर्किंग नोट 1. ठीक है जी. और जो आपकी बैलेंस शीट होएगी उसमें आपने एसेट साइड पे कैसे पुट करने हैं हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000. 45,000 कौन से, विच आर गिवन इन द एडजस्टमेंट, राइट जी. देन वी हैव एंट्रेंस फीस, दिस इज जर्नल इनकम. देन लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमेशा लाइबिलिटी साइड पे आती है. नाउ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, दिस इज न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. वी हैव टूर्नामेंट फंड. सो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सिंस इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी. सो हेयर यू विल पुट टूर्नामेंट फंड एंड वी हैव टूर्नामेंट फंड ऑफ 60,000. देन वी हैव डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, और हमने अपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करा था कि डोनेशन मतलब फंड आपका इंक्रीज हो रहा है. सो यू विल एड 20,000 बाय राइटिंग डाउन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट. लेस एक्सपेंसेस, तो लेस एक्सपेंसेस कितने करेंगे जी, 65. सो हेयर यू विल राइट 65,000 और बाहर कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा जी, 15,000. ठीक है जी. सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी साइड. क्लियर जी. Then afterwards we have on the payment side wages and salaries. So wages and salary जब आपने देखना है तो ऊपर भी देखना है कोई salaries इधर प्रीपेड तो नहीं है या फिर इधर तो नहीं है कोई. Yes, we have here salaries unpaid. So this is the opening balance sheet. It means this is opening salaries. तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी, माइनस. और एक हमने और एडजस्टमेंट में भी यहाँ पे पढ़ी थी, सैलरीज स्टिल अनपेड. सो दिस इज द क्लोजिंग outstanding. So closing outstanding would be the part of two sides. First of all, balance sheet की liability side पे हम यहाँ पे लिखेंगे salaries unpaid. Then जब आपने payment side पे लिखना है two salaries, तो आपने adjustment करके दिखानी है. Sorry, two wages and salaries is there. तो wages and salary हमारा है 60,000. Here we will write in the inner column 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग जो हमारे अपने हैं दैट वाज 6,000 विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. ठीक है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. और क्लोजिंग ओपनिंग हमारी थी 11,000. सो यू विल राइट हेयर 11,000. ठीक है जी. रेस्ट वुड बी द आउटर फिगर. सिमिलरली अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स मतलब ग्राउंड्स को मेंटेन करना. सो दिस इज योर जर्नल एक्सपेंस, ये भी यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा टू अपकीप ऑफ ग्राउंड्स. देन टू स्टेशनरी, और स्टेशनरी की अमाउंट आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है, कोई है तो नहीं स्टॉक, कंज्यूम्ड तो नहीं निकालना. देन ऑडिट फी, सिंपल खर्चा. एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट हो गए. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वी हैव डन. देन इन्वेस्टमेंट. सो ये इन्वेस्टमेंट वाला ऐसा पॉइंट है जो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा. वी हैव हेयर इन्वेस्टमेंट 5% एंड वी हैव गिवन द date that is 1st October 2019 and the amount 40,000. So how we are to calculate our interest on investment? Interest on investment would be total investment we have 40,000, then 5%, then 6 months, sorry 6 months, 6/12 है जी ये. ठीक है. सो 40,000 आर योर इन्वेस्टमेंट, 5% इंटरेस्ट रेट गिवन है, और 6 मंथ्स कैसे आए, अक्टूबर से लेके मार्च तक.
तो अगर आप अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट इंटरेस्ट फॉर 6 months ओनली, ठीक है जी। सो इसको सारा करके हमारे पास आएगा 1000 एंड दैट 1000 यू विल चेक फ्रॉम द रिसीट साइड कुछ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिया, एंड दैट वी हैव डन, वी हैव नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट आया दैट इज 1000, दिस इज द एक्रूड इंटरेस्ट। सो इट विल बी द पार्ट ऑफ टू साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम साइड पे आपने लिखना है 1000 बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको आगे भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड एक ऐसी एडजस्टमेंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो एसेट साइड पे क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट हेयर दिस इज 40,000 एंड accrued interest you will write here 1000. Done. Then afterwards we have cash and bank balances. This is the closing one, so it will be the part of your closing balance sheet. Here you will write 87,500 on the asset side, ठीक है जी। and at last you will have to check each and every transaction of opening balance sheet whether you have taken every adjustment or not. So starting from the first कैपिटल फंड, सो कैपिटल फंड आपकी बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल फंड। यू विल ऐड सरप्लस इफ यू विल गेट सरप्लस और लेस डेफिसिट इफ यू विल गेट डेफिसिट, और ये चीज़ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को सॉल्व करके पता चलेगी। देन टूर्नामेंट फंड डन, subscription in advance done, salaries unpaid done. Similarly sports equipment have taken, grounds, yes. सो ग्राउंड्स एक ऐसी एडजस्टमेंट है यहाँ पे जो आपको कहीं और इसकी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता। कोई ग्राउंड हमने और खरीदी नहीं है, कोई हमने सेल नहीं करी, इट मीन्स दिस इज वन ऑफ द एसेट एंड टेकिंग सिमिलरली ब्लेयर टेबल। तो ये दोनों ऐसे एसेट हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आई, सो यू विल टेक एज इट इज इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। और आप लॉजिकली सोचो कि कोई एसेट आपके पास शुरू में पड़ा है तो वो आपने कहीं पे बेचा नहीं है, कोई और खरीदा नहीं, इट मीन्स वी हैव नो चेंज, तो एज इट इज यू विल टेक इन द योर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग रखनी है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट होएगा ही होएगा। तो ग्राउंड्स एंड ब्लेयर टेबल आपने अपनी एसेट साइड पे लिख देने हैं एज इट इज जी, ठीक है जी। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वी हैव टेकन, कैश एंड बैलेंस बैंक बैलेंस हमने नहीं लेने क्योंकि हमने क्लोजिंग लेने हैं। ये तो हो गया, इधर से भी सारा हो गया। नाउ वी विल गो थ्रू आवर एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड वी हैव टेकन, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर वी हैव टेकन, ठीक है जी। और इसको हमने एक लाइबिलिटी साइड पे पुट करना है 4,000, यू विल राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance. Then salaries unpaid I have taken into treatments. Sports equipment ये भी हमने ले लिए, ठीक है, एज इट इज आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और इसकी रिटर्न ऑफ हमने निकालनी है। क्लियर? सो वी हैव डन ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना है, यू विल गेट योर सरप्लस और डेफिसिट, देन यू विल टेक दिस सरप्लस और डेफिसिट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, देन यू विल मैच योर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है जी। सो लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे सीबीएसई एग्जाम में सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी और क्लोजिंग हमने फॉर्मेट करनी थी। दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन इन योर बुक, वन इलस्ट्रेशन कैन बी देयर सिमिलर टू दैट बट दिस इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी कंसेप्ट यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉल मी, ओके जी।